السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نارا کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ بات کریں پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کھیلے جا رہی ون ڈے سیریز کے حوالے سے موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رک کے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ شاہی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ اجلاس۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت کے شہر گوا پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ ایس سی او اجلاس کے موقع پر دوست ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پر امید ہوں وزرائے خارجہ کونسل اجلاس مفید ثابت ہوگا، بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کا دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت۔ خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ اقدار کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایس سی او اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تنظیم کے چارٹر سے متعلق ہمارے عزم کا عکاس ہے۔ روابط کا فروغ، تجارت اور باہمی تعاون کی بنیاد پر سازگار ماحول سب کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے بین الاقوامی معاشی ماہرین کی لندن میں ملاقات۔ پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ اتحادی جماعتوں نے ریاستی مفاد میں سیاسی مفادات کو قربان کیا۔ کوئی شک نہیں کہ ملک کو مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے۔ چند ماہ میں توانائی شعبے میں نمایاں اصلاحات کی گئی ہیں۔ ٹیکس چھوٹ نظام میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ حکومت نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالر رہ گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پر جلد دستخط ہو جائیں گے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑانے والا خود ویل چیئر پر آ گیا۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے قوم کو نظر آ رہا ہے۔ بہروپیہ حالات کے مطابق سکرپٹ اور حلیہ بنا لیتا ہے۔ فارن ایجنٹ کے پاؤں پر نہیں، دماغ پر سازشی دباؤ ہے۔ عمران خان خطرے سے متعلق عدالت میں ثبوت دیں ورنہ اپنا منہ بند رکھیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ تمام اداروں کی حدود آئین میں متعین ہے۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ عمران خان نے معاشرے کو بدتہذیبی، تقسیم اور منافرت کا کلچر دیا۔ پاکستان کے خلاف سازش کا جلد ادراک ہو جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی پی ٹی وی نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو۔ ملک کسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی کی خواہش پر اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ عمران نیاسی امریکی سازش کے بیانیے سے امریکی غلامی تک آ گیا۔ فرد واحد کی خواہش پر آئین داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دیردونی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کا شدید تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک۔ دھرتی کے 6 سپوت مادر وطن پر قربان۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ معاشی خود مختاری کے لیے خصوصی افراد کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازمتوں کے کوٹے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ خصوصی افراد کو ہنر اور معذوری کی نوعیت کے مطابق نوکریاں دی جائیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ اسلام آباد میں پاکستان، چین، افغانستان سیفری کی اجلاس۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ چینی وزیر خارجہ چن گانگ اور عبوری افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فوج نے بارہمولہ میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ سری نگر اور کٹھوعہ اضلاع میں تلاشی کی کارروائیوں کے نام پر کئی نوجوان گرفتار۔ حریت کانفرنس کا فرضی مقابلوں کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار۔
निहत्ते फलस्तीनी इसराइली फौज के निशाने पर सिहोनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग, एक खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। मॉस्को में सदारती महल क्रेमलिन पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया, रूस का दावा। यूक्रेन ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूक्रेनी इलाकों पर रूसी हमलों में तेजी, 21 अफराद हलाक। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज चौथा मैच कल कराची में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। दोनों मैचेस जीतकर कौमी टीम के लिए वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने का मौका। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर देखिए बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास भारत के शहर गोवा में हो रहा है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर खारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए गोवा पहुंचे तो भारतीय वज़ारत खारजा के आला हुक्काम ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गोवा पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस तवक्को का इजहार किया कि शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास कामयाब रहेगा। उन्होंने कहा कि इजलास में शिरकत और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करना बाइस से मुसर्रत है। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के शहर गोवा में रूस के वज़ीर खारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के उमूर पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत में SCO वज़राए खारजा काउंसिल इजलास में शिरकत का फैसला तंजीम के चार्टर से मुतालिक हमारे अज़्म का अक्कास है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रवाबित का फ़रोग़, तिजारत और बाहमी ताउन की बुनियाद पर साज़गार माहौल सबके मुफाद में है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सैफ अरीकी वज़राए खारजा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में 6 मई को होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा कल से 8 मई तक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा एक आला सतह वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। वफ़द में अफगान वज़ीर तिजारत और सनअत हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी समेत मुख्तलिफ अफगान वज़ारतों के आला हुक्काम भी शामिल हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती रवाबित, अमन सलामती और तालीम के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सैफ अरीकी इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा चेन गॉन्ग भी कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरा बरतानिया के दौरान बादशाह बरतानिया चार्ल्स सोइम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए आए सरबराहान ममालिक के दावत में शिरकत करेंगे, जहाँ वज़ीर आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान लंदन में मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ लंदन पहुंचे तो पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी नुमाइंदे ने उनका इस्तकबाल किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी मुआशी माहिरीन ने मुलाकात की है। लंदन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी और माली मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसले को मानते हैं। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत माशी बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। हमने रियासती मफाद में अपनी सियासी तरजीहात कुर्बान की हैं। अंग्रेजी रोजनामे में शाया होने वाले मजमून में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को संगीन माशी चैलेंजेस विरसे में मिले। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान गैर मामूली मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में खास तौर पर गुज़श्ता चंद माह के दौरान नुमाया ढांचा जाती इस्लाहात की गई हैं। बिजली और गैस के शोबे में तमाम गैर अहदाफ सब्सिडीज़ को वापस लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ कदम बढ़ाया है ताकि गरीब और कमज़ोर तबके को महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों के असरात से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल के पहले 9 माह में सिर्फ 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रह गया, जो कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 13 अरब डॉलर था। इसहाक डार ने कहा कि टैक्स छूट निज़ाम में बिगाड़ पैदा करने के साथ महसूलात के अहदाफ में भी कमी का बायस बनती है। हुकूमत ने IMF के साथ इत्तेफाक के मुताबिक बतदरीज तमाम टैक्स छूट वापस ले ली है। तवक्को है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर जल्द ही IMF के साथ दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि जापान पाकिस्तान का अहम तरक्याती शराकतदार है और दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जापान के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने जापानी कंपनीज़ के सरमायाकारी मंसूबों का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करना होगा। उन्होंने जापानी सफ़ीर को माशी चैलेंजेस, हुकूमती पॉलिसियों और इस्लाहाती अमल से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया। जापान के सफ़ीर ने हुकूमत की जानिब से अमली पॉलिसियों और इक़दामात को सराहते हुए इस यकीन का इजहार किया कि दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से आलमी बैंक के वफ़द ने नायब सदर बराए इंसानी हुकूक ममता मूर्ति की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक वफ़द का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में आलमी बैंक के तरक्याती मनसूबों की तारीफ और फ्राहम की जाने वाली माली और तकनीकी मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने नायब सदर को अवामी तरक्की और मुल्क से गुरबत के खात्मे से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए आलमी बैंक के साथ मिलकर काम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का भी अयादा किया। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के नायब सदर ने मुल्क में मुतवक्के वसाइल में सरमायाकारी की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों खास तौर पर तालीम, सेहत और ग़िज़ाइयत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, आबादी पर काबू पाने और ख़वातीन की तरक्की में मकामी आबादी की शराकत की अहमियत पर जोर दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके देरदूनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द मारे गए जबकि 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। शहदा में टांग के रिहायशी हवालदार सलीम खान, कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले नाइक जावेद इकबाल और बन्नू के रिहायशी सिपाही नज़ीर खान शामिल हैं। सिपाही हजरत बिलाल शहीद का ताल्लुक़ मर्दान, सिपाही सैयद रजब हुसैन शहीद और अक्सई, जबकि सिपाही बिस्मिल्लाह जान शहीद खैबर के रिहायशी थे। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR एलामिया में कहा गया है कि शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के रास्ते में आहनी दीवार हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना और अपने शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग कितनी ही तवील हो, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज कौम के ताउन से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में वजारत की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि वजारत और इसके ज़ेली इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहाती अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में ICT की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसकी तंजीम नौ का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद की सफाई को आलमी मेयार के मुताबिक लाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला ने असला लाइसेंस के हुसूल में फिंगरप्रिंट की फराहमी के अमल को आवाम की सहूलत के लिए मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी के साथ मुकदमात में इमरान खान की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दीगर 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 मई तक की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 मुकदमात में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए कहा कि हम इमरान खान को कानून से हटकर कोई रियायत नहीं दे सकते। जमानत के लिए बहरहाल ट्रायल कोर्ट में पेश होना है। अदालत ने कहा कि हम इदारों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दे चुके, मगर इमरान खान तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे।
एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने निजी अस्पताल से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतराज़ उठाया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक फौजदारी केसेस में सिर्फ सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ही काबिल कबूल है। आइंदा सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मकाफ़ात अमल क्या होता है आज कौम को नजर आ रहा है। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाला आज खुद व्हील चेयर पर बैठ गया। कुलसूम नवाज की बीमारी और फिर मौत, नवाज शरीफ की बीमारी और शहबाज शरीफ की कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला इमरान खान आज व्हील चेयर पर बैठकर झूठ बोल रहा है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को चैलेंज किया कि इन्हें जिससे खतरा है अदालत जाकर सबूत दें वरना अपना मुंह बंद रखें। मौर्य औरंगजेब ने कहा कि फॉरेन एजेंट बहरूपिया हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और खुलिया बना लेता है। गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे और जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा रचाया जाता है। उन्होंने कहा कि फॉरेन एजेंट के पांव पर नहीं दिमाग पर साजिशी दबाव है। उन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर बैठकर इल्जाम लगाने के बजाय वो अदालत जाकर सबूत पेश करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान को खतरा सिर्फ फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, चेरियान केस से है, इसलिए गोली, प्लस्तर, डब्बे, व्हील चेयर और इलेक्शन का बहाना बना रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने पहले अपनी हुकूमत हटाने का मलबा अमरीका पर डाला, साइफर का खेल खेला और फिर अमरीका से माफ़ी मांगकर जनरल बाजवा, आसिफ अली जरदारी और फिर मोहसिन नकवी पर मलबा डाल दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शुहदा, इदारों और इनकी क़यादत के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने वाला फिर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। नाज़रीन, भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा कौंसिल में शिरकत करने के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत के शहर गोवा में मौजूद हैं और उनकी मसरूफियात क्या हैं, इस हवाले से जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा PTV न्यूज़ हसन तारिक बट से। हसन, आगाह कीजिएगा, आप गोवा में मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आज क्या मसरूफियात रहीं? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है जी। मैं इस वक्त भारत के शहर गोवा के अंदर जो है वो मौजूद हूँ और PTV की जो ये टीम है ये शंघाई ताउन तंजीम का जो वज़रा ख़ारजा काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास है उसको कवर करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं आज यहाँ गोवा के अंदर उन्होंने लैंड किया है। और आते अगर मैं रिकैप करूँ तो आज की एक्टिविटीज़ का, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो यहाँ पर उनको जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का, यहाँ पर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा के आला हुकाम उन्होंने उनको जो है वो उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया। उसके बाद जो है एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट भी दी है। स्टेटमेंट की बात करें अपने बयान के अंदर उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं यहाँ आके कि उनकी यहाँ पर आना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, CFM का जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करना, ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का एक मुतहर्रिक और जो है वो एक्टिव मेंबर है। और इस हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो रीजनल प्रायोरिटीज़ हैं, उनको खुसूसी अहमियत देता है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है मुकामी होटल है, यहाँ पर आज जो हैं वो आगे हैं। इस वक्त तक जो है उनकी रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लैवरोव, उनके साथ जो है वो बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसके अंदर दो तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा ताउन को मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने की नई जो राहें उनकी निशानदही उस हवाले से बातचीत हुई है। इसके बाद अभी जस्ट मोमेंट्स चंद जो है वो मिनटों की बात है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की SCO के जो सेक्रेटरी जनरल है जैंग मिंग, उनके साथ भी जो है वो मुलाकात होनी है, बायलैटरल मीटिंग है और किसी भी टाइम होने वाली है। हम सारे के सारे स्टैंड बाय हैं इसको कवर करने के लिए, तो जो ही होगी तो हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे जी। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, आपने मुलाकातों के हवाले से बात की, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि SCO इजलास के मौके पर किन किन रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल तौर पे हो सकती हैं और क्या इस मौके पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के जो वज़राए ख़ारिजा हैं उनकी मुलाकात का कोई इम्कान भी है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो है वो उनकी बायलैटरल अगर मीटिंग की बात की जाए तो एक तो जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर थे सरगेई लैवरोव, उनके साथ जो है वो एक बायलैटरल मीटिंग हो चुकी है थोड़ी देर पहले। अभी हमें स्टैंड बाय कर दिया गया है, किसी भी लम्हे जो है वो SCO के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो है वो मुलाकात होनी है। आज के दिन की जो शेड्यूल है ये 2 ही हैं। कल के दिन जो है वो 5-6 जो है वो बायलैटरल जो है वो मीटिंग्स हैं। और इस हवाले से मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि ये जो इजलास है ये इस किस्म की मीटिंग्स का एक बेहतरीन मौका जो है वो फराहम करता है, जिसके अंदर दो तरफ़ा ताउन, बाहमी जो दिलचस्पी के अमूर हैं, जो स्पेशली मुख्तलिफ शोबों में ताउन है, उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है जी।
हसन, पूरा दुनिया का मीडिया ये जान रहा है और देख रहा है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत 10 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये भारत का दौरा है। भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, किस कदर अहमियत दी जा रही है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस विजिट को? जी, जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो ये गोवा का दौरा है, इसको भारतीय मीडिया जो है वो भी खुसूसी अहमियत दे रहा है। बल्कि अगर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि सोटफा इसको थोड़ा सा जो है वो ये रंग भी देने की कोशिश की कि जैसे कोई बायलैटरल जो है वो मुलाकात होनी है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने क्लियर जो है वो इस हवाले से एक तो प्रॉपर तरदीद भी कर चुके हैं और उससे पहले भी ये बात वो मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि ये बायलैटरल विजिट नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान जो है वो SCO का जो इजलास है उसमें शिरकत कर रहा है। और ये साबित करता है कि पाकिस्तान कमिटेड है SCO चार्टर के साथ और इलाकाई सतह पर जो ताउन है उसको फ़रोग़ देने के हवाले से पाकिस्तान संजीदा है। जी बिल्कुल सही। अच्छा हसन, जो वज़ीर ख़ारिजा का इस वक्त दौरा है और शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा कौंसिल का जो इजलास है उसमें शिरकत है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के उस जेस्चर के हवाले से जो हमेशा पाकिस्तान देता है कि हम अपने जो भी बिरादर ममालिक हैं और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत में इजलास हो रहा है और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जितने भी क्लैशेज़ हैं उसके बावजूद शिरकत कर रहा है। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान का यहाँ पर आना ही इटसेल्फ जो है वो स्पेशली वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है ये CFM जो SCO का जो CFM इजलास है इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वफ़द की जो है वो क़यादत कर रहे हैं। दिस इटसेल्फ ये एक सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो SCO चार्टर के साथ संजीदा है। और स्पेशली अगर आप जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में जो हमारी इलाकाई तरजीहात हैं वो हमारे लिए खुसूसी अहमियत रखती हैं, ये सारे का सारा ये जो है वो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रहा है। जी हसन, वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, ये इलाकाई तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम। इस मुलाकात में और इस मरतबा जो भारत गोवा में इजलास हो रहा है, इसके एजेंडे के हवाले से क्या चीज़ सामने आई है, कौन कौन से अहम नुकात हैं जिस पर गुफ्तगू होगी? जी बिल्कुल, जो शंघाई ताउन तंजीम का की वज़ीर ख़ारजा का जो की कौंसिल का जो ये इजलास है, इसके अंदर एक तो 4-5 जुलाई को जो हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग होनी है उसका एजेंडा है उसको जो है फाइनलाइज किया जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, 5 ममालिक ऐसे हैं जिनको डायलॉग पार्टनर्स का जो है वो स्टेटस दिया जा रहा है, ठीक है ना। उस हवाले से उनके जो है वो MOUs भी जो हैं वो साइन होंगे। जी इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें तिजारत है, सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, प्रोडक्शन है, IT है, इस किस्म के जो ये शोबे हैं इनमें ताउन को बढ़ाने के ऊपर भी जो है वो बातचीत होगी। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ गोवा से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मसरूफियात के हवाले से तफसीली तौर पर हमें आगाह कर रहे थे। खबरनामे में आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आइन में तमाम इदारों की हदूद का तयन कर दिया गया है, पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार कोई भी वापस नहीं ले सकता। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जब भी आइन शिकनी हुई अदलिया ने इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इमरान खान ने मुआशरती इक़दार का जनाजा निकाल दिया। आइन को बनाना, आइन को पास करना, आइन को तश्कील देना, आइन में तरामीम करना, तमाम इदारों के जो हदूद और क़यूद का तयन है वो भी पार्लिमान करती है। जो इदारा भी अपने हदूद से बाहर निकला उसका निशाना पार्लिमान ही बनता है। जिस वक्त आइन पाकिस्तान को गुज़ंत पहुँचाया गया, उसको एब्रोगेट किया गया, तो हमारी जो जुडिशरी है ना उसे प्रोटेक्ट कर सकी, ना उसे डिफेंड कर सकी, ना उसे प्रिजर्व कर सकी। पिछले 4 साल में आपके माशरे की सारी हैयत बदल गई है। बहुत जल्दी लोगों को इदराक हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, एक हाइब्रिड वॉर है, इस माशरे को तोड़ा जा रहा है, इस माशरे में नफरतें फैलाई जा रही हैं। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत एक ही दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आइन दाव पर नहीं लगाया जा सकता। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपने इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ ایک شخص کی خواہش پوری کرنے کے لیے ملکی آئین داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. ملک اس وقت کسی بھی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ضد کے آگے کچھ نہیں دیکھتا. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا استحکام داؤ پہ ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو افراتفری ہے, جو کیوس ہے, اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے. یہ تو یو ٹرن کا ایکسپرٹ ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, پھر اسی امریکہ کے پیر پڑتے ہیں. اسی پہلے تو کہتے ہیں غلامی نامنظور, پھر غلاموں سے بھی بدتر ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اتحادی حکومت ایک ہی دن میں انتخابات کرانے پر متفق ہے. بدقسمتی سے اپوزیشن کی سربراہی ایک ضدی شخص کر رہا ہے. یہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے میری پارٹی چھوڑ کے جائے گا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ بڑی بڑی باتیں کرتا, آج یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو میں روڈوں پہ نکل آؤں گا. آپ نے اگر روڈوں پہ نکلنا ہے, آپ کل نہیں آج نکل آئیں, لیکن شرط ایک ہو کہ آپ یہ سر سے بالٹی اتار کے آئیں گے. بالکل ہم مذاکرات کے حق میں. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے مذاکرات کی بات کی. وزیر مملکت نے کہا کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے امریکی غلامی تک آ گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والوں کو بالٹی سے نجات کی تحریک چلانی چاہیے. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. معاون خصوصی ملک احمد خان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری قیادت کو جھوٹے بے بنیاد کیسز پر سزا دی گئی. ان کا کہنا تھا کہ اداروں پر الزام تراشی کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ بہت سے عدالتی فیصلوں نے ملک کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیک کے بعد کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. جو جج صاحبان ایک ہی طرح کے فیصلے دینے کے لیے پچھلے 8 سال سے انہی بینچوں پر بیٹھے ہیں. یہ 16 مقدمات کا چارٹ ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے جو میں اس کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور کنائیونس کن کے ساتھ تھی. جو بینیفیشری تھے عمران خان, انہی چیف جسٹس صاحب کے بیٹے ٹکٹیں دینے کے لیے کروڑوں روپے لیں گے. جو آپ کے سامنے آڈیو لیکس کی صورت میں اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سالہ دور میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں سے فلاحی کاموں کے نام پر لیے گئے چندے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. پورے پنجاب کی جو حالت تھی اس طرح تھا جیسے کوئی صحرا بن گیا. یہ حکومت جو کہ عمران کی ایک نکمی ترین بزدار سرکار بیٹھی ہے, جو کرپشن کے انبار لگا رہی ہے, جس کی رٹ کوئی نہیں ہے, جو لا اینڈ آرڈر میں بالکل ناکام ہے, جس کی گورننس بالکل زیرو ہے, جہاں پر پوسٹنگ نوکریاں بک رہی ہیں انڈر انفلوئنس آف ون پارٹی, جو پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے پاکستان کے انتخابی عمل سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے جیسے پاکستان کی سیاست کو برباد کیا, جیسے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. It's all pre-planned. معاون خصوصی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا ہوگا. یاسر حسین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے چیلنج کیا ہے کہ شاگرد خانوں کے علاوہ کسی نجی اسپتال سے عمران خان کا میڈیکل کرایا جائے تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کے بلانے پر عمران خان کا زخم ہرا ہو جاتا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان ایک مفرور ملزم اور کئی عدالتوں میں مطلوب ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالتوں سے اپنی مرضی کی تاریخ لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ایسا عادی مجرم ہے جو عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینے کا ماہر ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا فورن فنڈنگ کا کیس 6 سال چلتا رہا. کبھی ایک عدالت سے سٹے آرڈر, کبھی دوسری عدالت سے سٹے آرڈر, اور کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا, کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا, اور اسی طریقے سے 6 سال فورن فنڈنگ کے کیس کو زیر التوا رکھا گیا. معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان مختلف ہیلے بہانوں سے کیسز کو طول دیتا رہتا ہے. ان کا پلستر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ٹانگ پر ہوتا ہے. یہ ٹانگ ایک ایسی مشکوک ٹانگ ہے جو کہتی ہے کہ میرا علاج صرف شوکت خانم اسپتال سے ہوگا, باقی کسی ہاسپٹل میں عمران نیازی نہ جانے کو تیار ہیں, نہ میڈیکل رپورٹ بنوانے کو تیار ہیں. یہ بڑی سمجھدار ٹانگ ہے کہ جب ریلی نکالنی ہو تو بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, اسی ٹانگ پہ
जिस पे 2 दिन बाद प्लस्टर लगा होता है। मौसूफ ने आज जब काली ऐनकें पहनकर व्हील चेयर पर बैठकर अदालत रवानगी से पहले बयान जारी किया, उसमें मौसूफ फरमाते हैं कि सोजिश मेरे पाँव में है। अब ये घुटना पाँव कब बनता है, पाँव घुटना कब बनता है, ये हम समझने से कासिर हैं, और ये भी समझने से कासिर हैं कि दाईं टांग है या बाईं टांग है। अता तारण ने कहा कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना वाज़ेह करता है कि इमरान खान चोर है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग पार्टी सदारत केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के आइन में तरमीम का रदम करार देते हुए कहा कि हुक्म इम्तना के दौरान आइनी तरमीम खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के आइन में तरमीम की चौधरी वजाहत की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान तनाव और टकराव से नुकसान जमहूरियत का होगा। इलेक्शन एक जमात की मर्जी की बजाय सब जमातों की मुशावरत से होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि सियासी जमातों के माबैन डायलॉग में किसी हद तक कामयाबी हुई। मुल्क भर में इलेक्शन के एक ही रोज इनेकाद पर भी इत्तेफाक हुआ है। सियासी मसाइल का हल अदालत नहीं निकाल सकती। पीटीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने आज तक किसी इल्ज़ाम का सबूत नहीं दिया। इदारे और अदालत इनसे सबूत तलब करें। एक बयान में उन्होंने कहा कि टेहरियान के अब्बू को जान का नहीं माल का खतरा है। इससे तोशाखाना, फौरन फंडिंग, इद्दत में निकाह के मुकदमात से खतरा है। इस्लाम की रूह से टेहरियान का केस नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 ने अब तक अदालत के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाला आज खुद व्हील चेयर पर बैठा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने निज़ाम इंसाफ को मफलूज कर दिया है। ये चाहते हैं कि इमरान खान के मुकदमात में इंसाफ न हो। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि तोशाखाना केस में इमरान खान पर 8 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही, जबकि 8 साल से जारी फॉरेन फंडिंग मुकदमे का फैसला भी नहीं आ रहा। करारदाद पे करारदाद पास कर रही है, मगर उसकी करारदादों को दूसरे अदारे बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। पार्लियामेंट को भी चाहिए कि अपनी करारदादों की तौहीन ना करवाए, करारदादें पास ना करे, करारदादों पे अमल करवाए। इमरान खान लाडले को सादिक व अमीन और काम करने, किरदार और कारकर्दगी वाले को नाहिल किया गया। ये 2 वजीर आजमों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक अवाम के वोट से आया था और वो 3 दफा बना, और दूसरा आरटीएस सिस्टम बिठा के साकब निसार के फैसलों से आया है। उसके लिए और सहूलतें हैं। जरा गौर करें, नवाज शरीफ की जब केसेस थी तो डे टू डे हियरिंग, यहां पर तारीख पे तारीख, स्टे पे स्टे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात की शिक गैर मुअस्सर हो चुकी। आर्टिकल 254 के तहत जब भी इंतखाबात हुए दुरुस्त और आईनी समझे जाएंगे। अपने ट्वीट में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई महज नई तारीख नहीं बल्कि 3 असेंबलियों के कत्ल का मुतालबा कर रही है। पीटीआई का 2 असेंबलियां तोड़ने से काम नहीं बना। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़ार को करप्शन केस की तफ्तीश में फौरी शामिल होने की हिदायत कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि तफ्तीश में ताउन न करने की सूरत में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। उस्मान बुज़ार ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसील जानने और गिरफ्तारी से रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस तारिक सलीम ने वाज़ेह किया कि तफ्तीश का अमल रोका नहीं जा सकता। मुलजिम पहले शामिल तफ्तीश हों, फिर गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा कि 1 जनवरी 2018 को अगर हमारी शादी होगी तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह फ्रॉड पर मबनी था। बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान के साबिक पर्सनल असिस्टेंट और पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने अदालत में अपना बयान कलम बंद करवा दिया। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। निकाह खां मुफ्ती सईद के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह में शामिल बतौर गवाह ओन चौधरी ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि रेहाम खान को फौरी तलाक दे दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है।
बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने रिहाम खान को 2015 में ईमेल पर तलाक दी जब वो मुल्क में भी नहीं थी। तलाक के बाद इमरान खान जहनी परेशानी का शिकार हो गए थे और अक्सर बुशरा बीबी के पास जाने का कहते और यूं इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हैरानगी उस वक्त हुई जब इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात करने का कहा। ओन चौधरी ने अदालत को बताया कि मुफ्ती सईद ने निकाह के वक्त मेरे सामने तलाकनामे का पूछा, जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि दे दिया जाएगा। बाद में हमारे इल्म में ये बात आई कि 1 जनवरी 2018 तक बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें नवंबर 2017 में तलाक हुई थी। इस बात का इल्म इमरान खान और बुशरा बीबी को था और बाद में ये बात मीडिया पर भी आ गई थी। इमरान खान ने बुशरा बीबी के इद्दत का दौरानिया पूरा होने पर दोबारा निकाह के इंतजामात करने का कहा। मैं दूसरे निकाह में भी मौजूद था। इसके साथ ही ओन चौधरी ने अपना बयान अदालत में मुकम्मल कलमबंद करवा दिया। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास डेप्टी स्पीकर ज़ाहिर अकरम दुरानी की सदारत में हुआ। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के मामले की जानिब ईवान की तवज्जो मबसूल कराई। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा कि जज काबिल एहतराम है और इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि उनकी किरदार कशी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएं। उन्होंने कहा कि इस मामले को कमेटी में भेजा जाए ताकि इस मामले को हल किया जा सके। ऐवान ने मामला तहकीकात के लिए PAC को भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने वक्फ़ा सवालात में बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत में साबिक चीफ जस्टिस ने इमरान खान का घर रेगुलराइज़ किया। वो नया पाकिस्तान था, वहाँ वज़ीर आज़म और आम आवाम के लिए इंसाफ का दोहरा मयार था। हमारे दौर में कानून का दोहरा मयार नहीं है। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए शजरकारी पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए रुकन असम्बली कादिर खान मंदुखेल ने कहा कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड वेबसाइट पर मौजूद है। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर पब्लिक नहीं किया जा सकता। पैनल ऑफ चेयर की मेंबर आलिया कामरान ने आइन को निसाबी तालीम का लाजमी जुज़्व बनाने का मामला मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। कौमी असम्बली का इजलास 8 मई को शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद की माली खुदमुख्तारी के लिए सरकारी और निजी शोबे में मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान की तकरीबन 12 से 14% आबादी किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार है। हमें इनको माशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाना है। इस्लामाबाद में माजूरी की दर्जाबंदी के फ्रेमवर्क पर इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद के कोटे को इसके असल रूह के मुताबिक लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को काबिल कदर हुनर की फराहमी के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान करीबी रवाबित पैदा करने की ज़रूरत है। इजलास में वजारत इंसानी हकूक़ के हुकाम की जानिब से खुसूसी अफराद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के लिए नामजद सफ़ीर अहमद फ़ारूक से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद के लिए मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। सदर मुमलिकत ने नामजद सफ़ीर से कहा कि वो दो तरफ़ा रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने, तनाज़ जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को मुख्तलिफ फोरम्स पर उजागर करें। इंटेलिजेंस की मुसद्दिका खुफिया इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए डेरा इस्माइल खान में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली ख्यारा को हलाक कर दिया। दहशतगर्द इकबाल का कदम TTP ख्यारा ग्रुप का सरकर्दा दहशतगर्द था। पुलिस ने फतह मोड़ के करीब दहशतगर्द इकबाल की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली ख्यारा ने अपने साथी के हमरा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पुलिस ने खतरनाक दहशतगर्द इकबाल की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए की इनामी रकम का ऐलान कर रखा था। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली दहशतगर्दी की 26 और अगवा की 21 वारदातों में मतलूब था। इकबाल उर्फ बाली हालिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ट्रामा सेंटर पर होने वाले खुदकुश हमले में भी मुलव्विस था। इसके अलावा लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में भी मतलूब था। दहशतगर्द बाली ख्यारा की हलाकत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की रवा साल की सबसे बड़ी कामयाबी गिरदानी जाती है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायक मोहम्मद असद 21 मार्च 2023 को डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हुए। शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटे की शहादत पर उन्हें और पूरी कौम को फख्र है। शहीदों
वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बड़ा नाज है, फखर है, साढ़े शहर न फखर है, साढ़े कौम न फखर है, पर साढ़े बेटे शहीद हुए। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से। साहब फख्र तो हुआ, वक्त तो दुख भी हुआ। हमारा सबसे छोटा भाई था, वो भी चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। से कितनी भूलों को सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 4 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों शाकिर मजीद और हन्नान अहमद को जिला बारामूला के इलाके कुरेरी में शहीद किया। मुकामी लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि फौजियों ने जवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर और कठुआ के अजला में घरों पर छापों और तलाशियों के दौरान 4 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। भारत के बदनाम इज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय पैरामिलिट्री एहलकारों के हमरा बारामूला और किश्तवाड़ अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे और जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों के घरों की तलाशी ली। उन्होंने जिला इस्लामाबाद के इलाके वेरीनाग में हुर्रियत रहनुमा जाहिद अशरफ के आबाई घर की भी तलाशी ली। रियासती तहकीकाती इदारे ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी और दीगर अफराद के खिलाफ श्रीनगर में दर्ज किए गए एक झूठे मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी। SIA ने फर्द जुर्म में दावा किया है कि बशीर इरफानी और दीगर 2 अफराद जिद्दोजहद आज़ादी में तेज़ी लाने और मकबूजा इलाके में भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए फंड्स की तरसील से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में एक बयान में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को उनकी शहादत की दूसरी बरसी के मौके पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत और कुर्बानी की लामत अशरफ सहराई ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के बारे में अपने मौक़िफ़ पर कभी समझौता नहीं किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने G20 ममालिक के नाम एक ख़त में लिखा है कि वो रवा माह के आखिर में श्रीनगर में फैसला मोदी हुकूमत के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाली G20 ग्रुप के प्रोग्राम्स में शिरकत ना करें। G20 ममालिक को इस हकीकत का इतराक करना चाहिए कि मोदी हुकूमत आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गुमराह करके मकबूजा वादी में अपने जराइम पर पर्दा डालना चाहती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने मुजफ्फराबाद में मकबूजा कश्मीर में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि मुतनाज़ा इलाके में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस भारत की गहरी साजिश है। मोदी हुकूमत का ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और सहाफ़ती आज़ादी में भारत की मज़ीद तनज़्ज़ुली, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर तंजीम ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कर दिया। भारत में 1 साल के दौरान सहाफ़त और सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। फहरिस्त में भारत 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 180 ममालिक में से 161वें नंबर पर चला गया। गुज़श्ता साल भारत का नंबर 150वां था। दूसरी जानिब पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई है और पाकिस्तान 7 दर्जे बेहतरी के बाद 157 से 150 नंबर पर आ गया है। मुसलमानों को बदनाम करने की भारतीय साजिश नाकाम। दी केराला स्टोरी के नाम से प्रोपेगेंडा फिल्म का झूठ फिल्म रिलीज होने से पहले ही बेनकाब हो गया। हिंदुत्व के पैरोकार इंतहा पसंद इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में हर हद पार करने लगे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की भोंडी कोशिशें हमेशा नाकाम होती हैं। हाल ही में एक फिल्म दी केराला स्टोरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें दावा किया गया कि केराला से ताल्लुक रखने वाली 32,000 लड़कियों को मजहब की जबरी तब्दीली के बाद दाइश के लिए इस्तेमाल किया गया। जब फिल्म के प्रोड्यूसर से इस तादाद से मुतालिक सबूत मांगे गए तो रातों रात ये तादाद 32,000 से कम होकर महज 3 कहानियों तक महदूद हो गई। कश्मीर फाइल्स की तरह भारत की ये एक और मुसलमान मुखालिफ फिल्म मोदी के हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों से नफरत को जाहिर करती है।
झूठ पर मबनी ये फिल्म पूरी दुनिया में भारत के लिए जगहंसाई का सबब बन रही है। इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमान मुखालिफ जज्बात उनकी फिल्मों से हमेशा अयां होते हैं। माजी में कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म में भी मुसलमानों की बेबुनियाद किरदार कशी की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी 32,000 की तादाद पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। केरला के वजीर आला ने फिल्म को हिंदू इंतहा पसंदों का प्रोपेगेंडा करार दिया है। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद में उनके साथ है। आलमी कुव्वतों से अपील है कि कश्मीरियों को उनका हक दिलाएं। उन्होंने कहा कि हमारा वफ़द G20 ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करके मसला कश्मीर से आगाह करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से सियासतदानों, वुज़रा, जजेस, सिविल और फौजी अफसरान को दिए जाने वाले प्लॉट्स की तफसील तलब कर ली है। कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में हुआ। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल ने बताया कि 10% कोटा मौजूद है। कमेटी ने हिदायत की कि तमाम रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को फराहम किया जाए। कमेटी ने वजारत तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक को हिदायत की कि गुज़िश्ता 5 सालों में गंदम की खरीद और फ्लोर मिल्स को दिए गए कोटे की तफसीलात भी कमेटी को फराहम की जाएँ। तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद की अनकरा में तुर्की वर्ल्ड एजिंग काउंसिल और इब्न सीना इंस्टीट्यूट के सदर डॉक्टर कमाल इदन से मुलाकात हुई, जिसमें तालीम और सेहत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कमाल इदन ने तंजीम की जानिब से लाहौर में इब्न सीना यूनिवर्सिटी के क़याम के मंसूबे के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद ने वर्ल्ड एजिंग काउंसिल के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि तालीम और सेहत के शोबे में ये मंसूबा दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद करीब लाने में मुआवन होगा। जिला कुर्रम के इलाके बड़ा चिनार में 7 स्कूल असातिज़ा समेत 8 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को पाक अफगान सरहद के करीब तरी मंगल के इलाके में एक सरकारी हाई स्कूल के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है और फरीकैन के दरमियान अराजी के मामले पर तनाज़ा चला आ रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने असातिज़ा पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत और वाक़े के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म की वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत करते हुए मुतालिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर ले आए थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। इस्लामाबाद में ह्यूमन कैपिटल रिव्यू की तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था, जो साबिक़ा दौरे हुकूमत में सुकड़ कर 500 अरब से भी कम रह गया। मुल्क को मईशत में अदम तवाज़ुन के मसले का सामना है। पायदार माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम के साथ तवील मुद्दती पॉलिसीज़ बनाना होंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बरामदात में इजाफे और नॉलेज इकानमी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत ज़राअत में जिद्दत और पैदावार में इजाफे से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की तरक्की और बरामदात में इजाफे में कुलीदी किरदार का हामिल है। ज़िले सतह पर ज़राअत में जिद्दत और पैदावार में इजाफे पर इनामात का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़रई इनकलाब लाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद से इस्लामाबाद में रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी इनबॉक्स के CEO ने मुलाकात की और प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल सऊदी इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम के लिए मुख्तस किया जाएगा। टर्मिनल पर सऊदी इमिग्रेशन के काउंटर्स 8 बजे तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद सऊदी अरब सफ़ीर के हमरा सऊदी इमिग्रेशन टर्मिनल का दौरा करके इंतजाम का जायजा लूँगा। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज का कस्टम और इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से सऊदी अरब के लिए नामज़द सफ़ीर अहमद फारूक ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने सऊदी अरब को पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने के लिए ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे में जारहाना मार्केटिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब को ज़रई मसनूआत और टेक्नोलॉजी बरामद करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और दोनों ममालिक को ताउन के नए शोबों की निशानदेही के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
उधर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना है कि ज़राई इनकलाब मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस्लामाबाद में ज़राई मुकालमे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में इदारों के बाहमी ताउन में बेहतरी आ सकती है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़राई इक़दामात के हवाले से PARC और NARC का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि जदीद तरीका तहकीक अपना सकें। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर तालीम ने वाइस चांसलर्स और ज़राई मुहक्किकीन में शील्ड्स तकसीम किए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अवैस लगारी ने मुलाकात की। इस मौके पर शोबा तालीम और मुख्तलिफ उमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए निज़ाम पर एतमाद और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सरदार अवैस लगारी की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब ने जामपुर के तलबा के लिए गाजी यूनिवर्सिटी DG खान का बस रूट बढ़ाने के भी अहकामात जारी किए। कुराए अर्ज़ के माहौल को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए नई नस्ल को मुतहर्रिक करने का मिशन हुकूमत पाकिस्तान ने प्लानट चैम्प मुहिम का आगाज कर दिया है। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। करने के लिए आइंदा नस्लों को तरगीब देना है। हमने बच्चों को रिसाइकलिंग के अलावा अपसाइकलिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब है कि चीज़ों को इस्तेमाल करके एक दर्जा और बेहतर बना दिया जाए। ग्रेड 3 से 8 तक के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो हम घर में नहीं इस्तेमाल कर रहे या हमें नहीं यूज़ करनी या हमें फेंकनी है, इससे हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का कॉन्सेप्ट भी बच्चों में ला रहे हैं। प्लानट चैम्प मुहिम में तलबा का जज्बा भी दीदनी है, जो अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि जमीन पर आलूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें हम बनाएं और रिसाइकल करें कुछ चीज़ों से, जिससे एक बहुत सी इफेक्टिव हो और साथ ही साथ बहुत से लोगों को यूज़फुल भी आए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़ाया करते हैं जिससे हमें हो सकता है ना पता हो, लेकिन असल में हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको बहुत डैमेज हो रहा है। प्लानट चैम्प मुहिम का मकसद बच्चों की तवज्जो रोज़मर्रा के उन अवामिल की जानिब दिलवाना भी है जो माहौल को नुकसान पहुँचाने का सबब बनते हैं। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी है कि आगे आने वाली नस्लों को आगाही फराहम की जाए। प्लानट चैम्प भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की चंद अहम तरीन खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि NDMA ने मौसम गर्मा की तैयारी और हंगामी हालात के लिए तमाम शिराकतदारों से राबिता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इजलास की सदारत की। चेयरमैन NDMA ने हीट वेव और दीगर एमरजेंसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कबल अज वक्त हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत की कि मौसम गर्मा के दौरान पेश आने वाली मुमकिना कुदरती आफात से मुतालिक ज़िलई सतह पर आगाही मुहिम भी चलाई जाए। कॉन्फ्रेंस में सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और मुतालिका वफाकी इदारों ने मौसम गर्मा के लिए हंगामी तैयारियों से आगाह किया। मौसम गर्मा के लिए हंगामी सूरत हाल से मुतालिक ज़िलई सतह पर फ़र्जी मशकों का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन, रुख करेंगे पेशावर का और आपको आगाह करें कि पेशावर में तेज़ बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला कोहाट, हंगू, एबटाबाद, करक, बनू में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी हुई। यालाबारी से मेवाजात के बागात, खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। बेशतर अजला में गंदम की कटाई भी शुरू हो चुकी है। यालाबारी से गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 8 मई तक जारी रहने का इम्कान है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज गोजर खान के इलाके दरकाली में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से ज़िंदगी मफलूज हो गई। शदीद यालाबारी से गंदम की फसल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है
اور اب آپ کو ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ چھور میں 41, لاڑکانہ 40, مٹھی 41, موہنجو داڑو 40, جبکہ خیرپور میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 26, لاہور 34, کراچی 35, پشاور 28, جبکہ کوئٹہ میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔